Hello students, today we are going to start with the topic National Income Accounting Part 1. The National Income Accounts are an accounting framework used in measuring the current economic activity. So basically जो National Income Accounts होते हैं, they are accounting framework which are used in measuring current economic activity. Okay. The national income accounts are based on the idea that the amount of economic activity that occurs during a period of time can be measured in terms of. तो national income accounts जो हैं they are based on the idea कि जो amount है economic activity का जो that has been occurred during a period of time, it can be measured in terms of first one, product approach, which says that the amount of output produced excluding output used up in intermediate stages of production. In simple words, I can write value of output minus value of input. That's it. इस स्टेटमेंट को हम सिंपल वर्ड्स में इतना लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट. आप ध्यान से रीड कीजिए, अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड विच इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक्सक्लूडिंग का मतलब सब्ट्रैक्ट आउटपुट यूज्ड अप इन इंटरमीडिएट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. इंटरमीडिएट मींस वैल्यू ऑफ इनपुट. सिंपल. दिस इज द प्रोडक्ट अप्रोच. Second one, income approach, which says the incomes received by the producers of output. The incomes received by the producers of output. Third one, expenditure approach, which says the amount of spending by the ultimate purchaser of output. What is meant by ultimate? Ultimate means final. The amount of spending by the final purchaser of output. The fundamental principle underlying national income accounting is that, except for the problems such as incomplete or misreported data, all three approaches give identical measurement of the amount of current economic activity. तो चाहे आप प्रोडक्ट अप्रोच से मेजर कर लो, चाहे आप इनकम अप्रोच से मेजर कर लो, चाहे आप एक्सपेंडिचर अप्रोच से मेजर कर लो, all these three approaches give identical measurement of the amount of current economic activity. Clear? We can illustrate why these three approaches are इक्विवेलेंट. जो अभी हमने रीड किया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि जो तीनों अप्रोचेस हैं, प्रोडक्ट अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच एंड इनकम अप्रोच, ऑल दीज थ्री अप्रोचेस विल गिव आइडेंटिकल मेजरमेंट ऑफ करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो व्हाई दीज थ्री अप्रोचेस आर इक्विवेलेंट, वी विल शो इट बाय एन एग्जांपल. इमेजिन एन इकोनॉमी विद ओनली टू बिजनेसेस. एक इकोनॉमी को आप इमेजिन कीजिए जहां पे सिर्फ दो ही बिजनेस हैं. कौन कौन से? ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन एंड जूस इनकॉर्पोरेशन. तो ये दो बिजनेसेस हैं जो हम एज्यूम कर रहे हैं यहां पर. ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन ओन्स एंड ऑपरेट्स ऑरेंज ग्रोव्स. इट सेल्स सम ऑफ इट्स ऑरेंजेस डायरेक्टली टू द पब्लिक. It sells the rest of its oranges to Juice Incorporation, which produces and sells orange juice. So basically हमने क्या रीड किया इसमें? सबसे पहले हमने एक इकोनॉमी एज्यूम की है with only two businesses, Orange Incorporation and Juice Incorporation. Then we said that Orange Incorporation owns and operates orange groves. Basically it sells some of its oranges directly to the public and it sells the rest of its oranges to Juice Incorporation. और बाद में Juice Incorporation उन oranges का क्या करेगा? It will produce and sells the orange juice. इतनी बात क्लियर? So this following table shows the transactions of both the businesses. This is the Orange Incorporation transactions and this is Juice Incorporation transactions. The question is, what is the total value measured in dollars of the economic activity generated by these two business? तो हमें basically current economic activity हमें देखनी है measured in dollars generated by these two businesses. कि total value क्या होगी उसकी economic activity की.
The product approach, income approach, and expenditure approach are three different ways of arriving at the answer to this question. However, all yield the same answer. तो हम अगर हमें टोटल वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स जनरेटेड बाय दीज टू बिजनेसेस, वो हम इन तीन अप्रोचेस की मदद से निकाल सकते हैं. तीनों अप्रोच का ये जो थ्री अप्रोचेस हैं, दे आर different ways of arriving at the answer to this question, but all the approaches will yield the same answer. हर अप्रोच से हमें सेम आंसर मिलेगा. सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट अप्रोच. The product approach measures the economic activity by adding the market value of goods and services produced, excluding any goods and services used up in intermediate stages of production. वही बात है जो अभी हमने रीड की थी इससे पहले, that value of output minus value of input. Value of output minus value of input. This approach makes use of value added concept. The value added of any producer is the value of output minus the value of input it purchases from other producer. तो value added क्या है? Value of output minus the value of input it purchase from other producers. The product approach computes the economic activity by summing the value added by all producer. तो प्रोडक्ट अप्रोच क्या कहती है कि जितने भी प्रोड्यूसर हैं, हमारे केस में दो प्रोड्यूसर हैं, एक ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन और एक जूस इनकॉर्पोरेशन. तो प्रोडक्ट अप्रोच कैसे मेजर करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को? बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड किस किस का. एक हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड बाय ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन और एक हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड बाय जूस इनकॉर्पोरेशन और फिर हम इसको कर देंगे प्लस. तो जो हमारे पास निकल के आएगा दैट इज द करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में. करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेटेड बाय दीज टू बिजनेसेस, ये वो कहना चाह रहा है. और वैल्यू एडेड का फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इनपुट परचेसेस फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर. In our example, Orange Incorporation produces output worth $35,000 and Juice Incorporation produces output worth $40,000. एक बार देख लेते हैं हम अपने टेबल में. ओके, तो ये है Orange Incorporation ट्रांजैक्शंस. इसने कितना टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इसने प्रोड्यूस किया है वो हमें कहां से दिखेगा? यहां से. रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ऑरेंजेस. तो टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया भाई? $35,000. दिस इज द टोटल रेवेन्यू विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ऑरेंजेस. सो ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन प्रोड्यूसेस आउटपुट वर्थ $35,000. अब बात हम कर लेते हैं जूस इनकॉर्पोरेशन ट्रांजैक्शंस की. इन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है? रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ऑरेंज जूस. जो ऑरेंज जूस सेल करके रेवेन्यू जनरेट हुआ कितना है? $40,000. ये उसने अपनी स्टेटमेंट में वहां पर कहा था. एक बार उस स्टेटमेंट को दोबारा देख लीजिए. दैट ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन प्रोड्यूसेस आउटपुट वर्थ $35,000 एंड जूस इनकॉर्पोरेशन प्रोड्यूस आउटपुट वर्थ $40,000. कि उसने इतना रेवेन्यू जनरेट किया और जूस इनकॉर्पोरेशन ने इतना रेवेन्यू जनरेट किया. ओके. However, measuring the overall economic activity by simply adding $35,000 and $40,000 would double count the $25,000 of oranges that Juice Incorporation purchased from Orange Incorporation and processed into juice. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो ये कह रहा है कि अगर आप ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को इस तरीके से मेजर करते हैं कि आपने ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन का ये जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है और जूस इनकॉर्पोरेशन का जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है, अगर इसको सिंपली ऐड कर दिया तो आप डबल काउंट कर देंगे किसको? $25 ऑफ ऑरेंजेस जो जूस इनकॉर्पोरेशन ने परचेज किए थे. किससे? ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन से. एंड इट प्रोसेस्ड इनटू जूस. एक बार इस बात को समझिए. दिस वाज द रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ऑरेंजेस by the Orange Incorporation transaction, $35,000. अब इस $35,000 में क्या क्या इंक्लूडेड है? एक तो ये 10,000 which is oranges sold to public, and second one
$25,000 which is oranges sold to Juice Incorporation. So we have already included this. We have already included this in 35,000. Fine. Next, when we are considering this revenue received from the sale of orange juice $40,000, अगर मैं इस 35,000 के अंदर डायरेक्टली $40,000 को ऐड करता हूं, एक बार ये $25,000 यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है. दिस वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इट. अगर मैं $40,000 को डायरेक्टली उसमें प्लस कर देता हूं तो ये $25,000 एक बार दोबारा ऐड हो जाएगा, बिकॉज जूस इनकॉर्पोरेशन जो है it purchased this one, oranges purchased from Orange Incorporation. They have used these $25,000 of oranges and processed into juice. तो इसीलिए पहले मुझे इस इनपुट को माइनस करना होगा इस आउटपुट से. ये ऑलरेडी 25,000 की वैल्यू यहाँ पे काउंट हम कर चुके हैं. अगर मैं $40,000 को डायरेक्टली उसमें प्लस करता हूं 35,000 में, तो ये 25,000 दोबारा से ऐड हो जाएगा. इसकी वैल्यू को मुझे इस 40,000 में से माइनस करना होगा. ओके. टू अवॉइड दिस डबल काउंटिंग वी सम द वैल्यू एडेड रेदर देन आउटपुट. तो इसीलिए इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमें वैल्यू एडेड को ऐड करना चाहिए रेदर देन आउटपुट. Because Juice Incorporation processed oranges worth $25,000 into a product worth $40,000, Juice Incorporation value added is, तो सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने. This was value of output. This was value of input purchased from Orange Incorporation. $25,000 के ऑरेंजेस परचेज किए थे ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन से, तो वो हो गया इनपुट की वैल्यू, वो आपने माइनस करनी है. रेवेन्यू टोटल इसने कितना जनरेट किया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट. ये जो $15,000 निकल के आया, ये आपका है वैल्यू एडेड बाय जूस इनकॉर्पोरेशन. Clear? This was the revenue. This was the input. This was the value of output. Value of output. And this is the value of input. तो जस्ट हमने 40,000 में से 25,000 माइनस किया, कितना आया, $15,000, विच इज वैल्यू एडेड. Orange Incorporation doesn't use any input purchased from other businesses, so its value added equal its revenue of $35,000. अगर हम Orange Incorporation की बात करें तो उसने कोई भी इनपुट परचेज नहीं किया है फ्रॉम अदर बिजनेसेस, तो उसका वैल्यू एडेड उसका रेवेन्यू के इक्वल ही हो जाएगा. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इसका वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज $35,000 माइनस $0, because Orange Incorporation doesn't purchase any input from other businesses, so its value added will be equal to its total revenue. Simple. जो इसका रेवेन्यू है, इसने कोई इनपुट लिया ही नहीं है किसी दूसरे बिजनेस से, तो इसलिए यही इसका वैल्यू एडेड हो जाएगा. Thus total value added in the economy is, तो ये आपका है वैल्यू एडेड किसका, अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, वैल्यू एडेड बाय ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन. And this is the value added by Juice Incorporation. टोटल वैल्यू एडेड कितना हो गया, $50,000. तो ये है आपका एक तरीके से वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. दिस इज टोटल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी.
जो हमें कैलकुलेट करनी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी generated by these two businesses. This is the total value of economic activity generated by these two businesses. Clear? Thank you.